So let's start. So good morning, all of you. Dear students, continue with this shear force and bending moment. In the last class, we had the discussion on the same topic, but we have taken some different case to solve in form of the numerical, and we have made discussion on that. And today we will come with some new problem, and we get the solution of that also, and how we can solve, how can we get that any kind of problem if come related to the shear force and bending moment, what will be our approach to solve that. So this is a problem, and the problem statement is: draw the shear force and bending moment diagram for single side overhanging beam subjected to the loading as shown in below. And mark the silent point, okay, and on the shear force and bending moment. Okay, the simple question is that, but this load diagram, you can see this, what you have see, this is a look some, some different kind, some arrangement is there, some offset is there. So how this offset convert in the our regular kind of loading system? So we will see here that thing also, and we will see, we will draw this shear force diagram and bending moment diagram for the given load situation. This is, you can say, a different type of the things. This may come your competitive examination, like so how, what approach you will be used to solve this condition, basically, if some offset is there. So this is a new thing for this numerical. So let's see, and the all the procedure will be same what we have already discussed in the last classes. So let's move on. So what will be our approach to convert these offset load is like this. You can see offset load, effect of the offset load, you can see at the point C, at the point of C. Okay, so this point C, you can see the from point C, the distance, a perpendicular distance is 0.5 meter. So if it is a 0.5 meter is from this point C, so it may create a moment of on this point C. So how to get the moment? We know the load into perpendicular distance. So same approach we adopted here too. So 40 plus 0.5 is 20 kilonewton meter. Moment will act at the point C, this point C, and also this 40 kilonewton point load is also experienced by C. So directly we 40 kilonewton will be placed at the point C. So now this whole arrangement will be replaced by this arrangement, or you can say this is a simple arrangement of after solving this offset condition. So now this one below one, the beam structure or load beam is downside. We can see this is the final one where we are applying, we will apply our concept what we had discussed since last 2-3 classes. So we will adopt the same procedure, and but one thing is new here. The in question the offset one is new, and here one couple, if some movement is there, if the some movement is acting on some on the point, what will be the effect of that movement on the shear force and bending moment, we will also going to be analyzed. So this is the one things we are going to be have discussion on this particular numerical. So let us see, this is a problem statement. So what we will be do first we will be find the reaction at the support. So how we can calculate the reaction? First you make
bending moment equation or the bending moment equation, not bending moment equation, moment equations. If about A, about A or B equal to 0, or some shear force equation, force equation, we can also make for this particular problem. So let's see. So first calculate the reaction. So the simple procedure, what we are doing, so we are going to take the moment of the all load about this point A, this point A ke about. Okay, so then moment lenge, the procedure is the same. Then this RD into the perpendicular distance 2 1 1 4. So RD into 4. Then this, if suppose this is a hinge kind of things, so it is this load RD will try to be rotate in the anti-clockwise. So if it is if try to be rotated anti-clockwise, so sign minus sign will come here. So this we have already decided in the previous classes. So let's see what is the another load. Another load is a 20. Then 20. This is the UDL. So UDL ko you have to be converted as a point load, and which will act as the half of the total distance. This is the total length, total distance of the UDL. So kitna hai? 20 into 2 into 1. Okay, so dekho 20 into 2 into 1. Then next load is the 40. What is the 40 distance of the 40 from A? 1 2 3. 40 into 3. You can see the 40 into 3. Why every time we are taking here plus plus plus? Because with respect to point A, all trying to move this beam at the clockwise direction. So that's why plus sign is coming. Now the what is the next load? Next load, this is a triangular load, and triangular load in the last class we already made discussion on that. So first this load have to be converted into the what? We have to convert into the load, because it's a triangular kind of loading or uniformly varying load. Both are the same thing. So 1 by 2, this distance, how much? It is a 2, and this one, this is a 30. So 1 by 2, 2 into 30. And now what is the distance of this load, CG of this kind of load to point A? So 2 1 2 1 1, this is a 4 to hai apne paas. Now this we have to be calculate the CG of this triangle from the base. This is the base. Suppose this triangle hai, to ye triangle ka base to hota hai h by 3. What is the h? H means this 2. So directly you can write 4 plus 2 by 3. This is the procedure. So let's find the value of RD. RD is 80 kilonewton. Now you have to be write the force equation. Then force equation. Chaliye. So RA plus RD. So we can put the value of RD directly 80 here. Then and what the force which is acting downward, we take the negative sign के साथ लेंगे. दो पहला ये तो पहला हो गया, दूसरा यहाँ तीसरा लोड ये 20 into 2, very good, 40 आ गया direct, and this triangular load 1 by 2, 2 into 30. Then calculate RA. RA is the 30 kilonewton. So now we have the 30. Now we have the RA and RD. Then we can calculate the value of this shear force. So how we already decided what the procedure we are going to be adopt for calculating the shear force. That would be first where the force is acting, point load is there. You can see this is the RA. It is one form of the point load which is acting at this location. So one cross section we have to take before the load, before the point load, and after the point load. Okay. So ये हो गया. Here this is ending UDL. So end जहाँ हो रहा है UDL, उसको एक section लीजिए. Then next point load is this 41. So one before and one after. Here one and support is acting here. So one before, one after, and one is at the end of this load or beam. ठीक है, यहाँ हमने लिया. अब इसको let's solve this. बहुत सेम concept. फर्स्ट कौन सा लेगो आप? जीरो. कोई लोड नहीं है, जीरो के लेफ्ट में
जीरो के लेफ्ट में कुछ नहीं है, तो आंसर इज F00 इज 0। नाउ द F11 क्या होगा, दिस वैल्यू 30 किलो न्यूटन। देन यू हैव टू बी फॉलो अ साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन हमने फॉलो किया था, बनाया था कि अगर ये सेक्शन है एक्स एक्स, ये वाला रेड का बीच में जो डॉटेड लाइन है, सो जो भी ऊपर से लोड लगेगा पॉजिटिव होगा, राइट साइड में, राइट साइड में जो नीचे से लगेगा वो निगेटिव होगा। यहाँ निगेटिव, यहाँ, सो दिस इज साइन कन्वेंशन। चलिए सर साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। तो इस 1 1 के ये है लेफ्ट साइड में डाउन टू अप, देखो डाउन टू अप प्लस, तो 30 हो जाएगा, F11 30 प्लस हो गया। देन नेक्स्ट 22 पे आइए, 22 में क्या हो जाएगा, F22 30 जो पहले था वो 30, फिर देखिए 20 इंटू 2 हो गया 40, 20 इंटू 2 40 हुआ। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, 20 इंटू 2 इंटू 40, देन ये इस 2 के लेफ्ट साइड में अप टू डाउन, तो निगेटिव, तो ये जाके 30 माइनस 40 हो जाएगा, तो -10 है। चलिए मैं दिखा देता हूं आपको, मैंने लिखा तो है यहाँ। सो दिस इज अ कैलकुलेशन फॉर दिस एयर फोर्स। अब देख लीजिए कि फॉर F01 के लिए क्या है 0, F11 के लिए 30 कैसे आया, आई डिस्कशन यू, मैंने उससे करा आपसे अभी थोड़ी देर पहले। नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ F22, तो 30 हम यहीं से ले लेंगे एज इट इज, माइनस माइनस दिस 20 इंटू 2, बिकॉज ये है यूडीएल, यूडीएल में हमेशा उसकी लेंथ का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा अगर शेयर फोर्स कैलकुलेट कर रहे हो। अब बेंडिंग मूवमेंट कर रहे हो तो उसको पहले फोर्स में कन्वर्ट करो, फिर उसके साथ उसका हाफ, और जितनी डिस्टेंस और भी हो वो सबको ऐड करो। दिस इज द प्रोसीजर। सो अब हमको 10 -10 किलो न्यूटन आया। अब चाहिए 3 3 में -10 इसलिए क्योंकि यहाँ बीच में 2 और 3 के बीच में देयर इज ए नो लोड, तो एज इट इज हमने ले लिया। फिर 4 में आइए जरा, 4 में अब तो पहले का ले लेंगे 3 का -10, और ये उससे पहले आ गया 40 किलो न्यूटन का, कहां से लग रहा, ऊपर से नीचे। ये आइए देखो, ये अगर क्रॉस सेक्शन है ऊपर से नीचे वाला निगेटिव हो गया, लो भैया निगेटिव हो गया तो माइनस हो गया, -50 नीचे चला जाएगा, ठीक है, तो -50। तो इस वाले यहाँ पर दो वैल्यू हो गई इसकी, एक -10, एक -10 और एक -50, तो ये चीज हम आएंगे। चलिए 5 में चलते हैं। जैसे 5 में आया 4 से 5 के बीच की, तो 4 से 5 के बीच में कोई लोड नहीं, तो जो 4 में है वो 5 का भी हो जाएगा। 6 में आओ 6 में, तो 6 में जो 5 की वैल्यू होगी एज इट इज तो हम लेंगे। फिर उसके बाद और कौन सा लोड लग रहा है, देखिए जरा 6 के लेफ्ट साइड में नीचे से ऊपर लोड लग रहा है 80 किलो न्यूटन का, नीचे से ऊपर मतलब पॉजिटिव, तो ये देखो 30 किलो न्यूटन हो गया, यहाँ आ गया। अब 7 में आइए, 30 यहाँ ऑटोमेटिक यहाँ से उठा लेंगे, फिर उसके बाद इस वाले लोड की जितनी मैग्नीट्यूड होगा उसको हम रख देंगे। चलो भैया कितना है लोड का मैग्नीट्यूड, चलो वही तरीका है, 1/2 दिस ऊंचाई एंड दिस बेस, तो 1/2 इंटू 30, सो 30 हो गया, कैंसिल हो गया, 0 आ गया लास्ट में, इसका मतलब चेक हो गया। अब तुमने जो कैलकुलेशन किया वो सही है, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक प्रोसीजर और चेक बोथ। सो ये कैलकुलेशन होगा शेयर फोर्स का। अब देखो इस बीम में शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे। देखो अपने पास कितनी वैल्यू हो गई, 0, 30, -10, -10, -50 मतलब कांस्टेंट जाएगा, देन 30 एंड देन 0। तो पहले दो की क्या है, 0, 30, -10। चलिए अपन इसको देखते हैं, ड्रॉ करते हैं, 0, 30, -10। सो 0 यहाँ से स्टार्ट, इसका मतलब ये क्या हुआ, इधर से वैल्यू थी तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, स्ट्रेट 30 तक आए, फिर -10 है, तो आप यहाँ से रेफरेंस लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है उससे कोई दिक्कत नहीं है, कंस्ट्रक्शन लाइन बोलते हैं उसको, ठीक है, कंस्ट्रक्शन लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। तो -10 लिया, अब इन दोनों छोरों को, इसके जो कॉर्नर है यहाँ टॉप में जो है, इन दोनों और इन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से मिला दिया। स्ट्रेट लाइन से क्यों मिलाएंगे, क्योंकि जब भी
बीम सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसके ऊपर यूडीएल लगा हुआ है और उसका जो शेयर फोर्स में जो वैल्यू होगी हमेशा उसके अंदर वो स्ट्रेट लाइन होती है। स्ट्रेट लाइन अब ये खींच दी हमने, ठीक है, यहाँ से सीधी स्ट्रेट लाइन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए। चलिए इसके बाद 3 पे आइए तो वही जो 2 पे होगी वही वैल्यू 3 पे होगी, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू 4 में क्या होगी, वहीं से जाएंगे 50, तो 50 नीचे चला जाएगा, टोटल 50 है तो यह 50 आ जाएगा, फिर 50 कांस्टेंट है, फिर 80 आया था पॉजिटिव और फिर उसके बाद 0, इस तरह से मिलाएंगे। ये तो स्ट्रेट लाइन, यहाँ देखो ये इसका इंक्लाइंड लाइन यहाँ हो जाएगी, फिर ये तो कांस्टेंट ऐसे लाइन मिलाते जाते हैं, इसको कांस्टेंट लाइन बोलते हैं यहाँ पर। फिर इसके बाद यहाँ से होता है पैराबोला। जब कोई यूडीएल में इंक्लाइंड लाइन, यूवीएल में पैराबोला, शेयर फोर्स के केस में, ठीक है, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो दिस इज द basically calculation and for the shear force and draw this shear force diagram। shear force diagram को ड्रॉ करने की ये एक मेथड है और we have successfully drawn। नेक्स्ट कैलकुलेट द बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट, अच्छा इसका ये जो आपके पास मोमेंट है ना शेयर फोर्स में, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इसका फर्क पड़ने वाला है बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। आइए बेंडिंग मोमेंट में इसको ये आएगा। सो बेंडिंग मोमेंट में जहां कॉर्नर, यहाँ दोनों एंड पे 0 हमने पहले ही लिख दिया। अब निकालना तुमको बी पे निकालना है, सी पे निकालना है और डी पे निकालना। और एक चीज और, ये देखो यहाँ पर शेयर फोर्स साइन चेंज कर रहा है, तो जहां शेयर फोर्स साइन चेंज करता है वहां बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है। ये तो आप याद रखो, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम। अगर यूडीएल देखो, यहाँ देखो ये आया तो यहाँ मैक्सिमम, तो ये वैल्यू कितनी होगी, ये 1.5 डायरेक्ट नहीं लिखा है, हमने कल डिस्कशन किया था इसके लिए पहले से। तो हम क्या करेंगे, इस x यहाँ पर एक मान लेंगे कि ये सेक्शन x है यहाँ पर, तो यहाँ के लिए हम शेयर फोर्स की इक्वेशन ड्रॉ करेंगे। तो क्या हो जाएगी शेयर फोर्स की, मान लो क्या हो जाएगी, Fx इक्वल टू Fx इस सेक्शन पे, ये हाउ मच दिस 30, ये ऊपर से नीचे तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में है ऊपर से नीचे पॉजिटिव। दूसरा लोड अगर ये xx है ऊपर तक बढ़ाओगे आप, यहाँ पर भी आ जाएगा x, तो ये कितना डिस्टेंस है x, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 20x, क्योंकि ये क्या हो जाएगा लेफ्ट साइड सेक्शन के लेफ्ट ऊपर से नीचे माइनस, ये हो जाएगा शेयर फोर्स 0, इस पॉइंट पर 0 है, यहाँ की इक्वेशन है, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू हो जाएगा 1.5 मीटर। So this is we have calculated directly x is equal to 1.5 मीटर। so इस पॉइंट पे भी हम निकालेंगे शेयर फोर्स, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया आपका शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए हमने तैयारी कर ली। तो बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन करते हैं, ये बता दिया कॉर्नर में 0 हो गया। अब यहाँ पर निकालना है, एक x पे निकलेगा, एक b पे निकलेगा और एक c पे निकलेगा, एक d पे निकलेगा, ठीक है। तो x पे निकाल लो, x कितने डिस्टेंस में 1.5 पे, ये 1.5, तो क्या करोगे 1 आर ए कितने डिस्टेंस में 1.5, तो हो गया आर ए इंटू 1.5। आर ए की वैल्यू कितनी थी 30, अभी चूंकि ऊपर की तरफ लेके जाएगा तो पॉजिटिव हो गया। अब इसके बाद 1.5 पे ये कितना है 20 इंटू 1.5 इंटू 1.5 का आधा, बस सेम प्रोसीजर, ये आ गया 22.5 किलो न्यूटन मीटर, तो ये x पे आ गया। अब b पे निकालो, b पे निकालो जरा, यहाँ से डिस्टेंस कितनी हो गई 30 इंटू 2, ऊपर की तरफ लेके जाएगा इसलिए पॉजिटिव, फिर ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा 20 इंटू 2 इंटू 2/2, तो 2 का आधा 1, सो ये डायरेक्ट हो जाएगा 20 किलो न्यूटन मीटर। अब चलो सी पे चलते हैं, सी पे मजेदार चीज है, ये चीज थोड़ा समझ लेना। सो सी पे जब आप कैलकुलेट करोगे तो सी से पहले एक ही डिस्टेंस, तो कितनी है आपकी 3, तो सबसे 30 इंटू 3 ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, ऊपर से ये 20 है, अगर 20 वाले को देखो जरा 20 कितने पे लग रहा है 2, तो 2 इंटू 2। अब डिस्टेंस सी से इसकी कितनी है, पहले इसका आधा लोगे 1 और ये 1,
2, इसलिए 2, तो 10 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, अब कपल को कंसीडर करना पड़ेगा। एक यहाँ पर दो वैल्यू होगी, एक बिफोर एंड एक आफ्टर, तो एक सी और देखते हैं। तो पहले जो 10 आया उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा ये जो आ रहा है, ये देखो, ये इसका रोटेशन अगर इसको अगर लेके जाओगे तो दिस विल ट्राइंग टू बी ब्रिंग अपवर्ड डायरेक्शन टू दिस बीम, ऊपर की तरह ये मोड़ेगा। दिस कपल इज क्लॉकवाइज कपल जो होता है ऊपर की तरफ उसको रोटेट करता है। तो यू कैन जस्ट एड द 20 here, so 30 kilonewton meter, this is also you have to be do that, so we will be get the two value of C। likewise आप देख आप and D पे निकाल लेते हैं, then I'll say some another things। so D पे कैसे निकालना है, either you can take the left side all the force or right side the force। तो यहाँ पर we have done right side one, इसको ले लिया, छोटा कैलकुलेशन होगा इससे, इसको छोटू को ले लिया। तो देखो क्या होगा, पहला 1/2 this and this, 1/2 this and this, और फिर इससे लेके इसके सीजी की डिस्टेंस कितनी होगी, इस बेस से h/3, तो ये हो गया h/h की वाला 2 हो गया, तो इंटू 2/3 यहाँ आ जाएगा, तो -20 किलो न्यूटन ये हो गया। अब ये तो 0 हो गया। अब मैं आपको व्हाट आई वांट टू टेल यू, यहाँ यू कैन सी दैट डियर स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर एट द पॉइंट ऑफ सी तो के पास दो वैल्यू आ गई, 110 एंड दूसरा 30। क्योंकि यहाँ पर दिस मूवमेंट इज एक्टिंग, तो मूवमेंट बेंडिंग मूवमेंट में वही काम करता है जो शेयर फोर्स डायग्राम में फोर्स का होता है। फोर्स क्या कर रहा है, देखो शेयर फोर्स डायग्राम जहां पर आप पॉइंट लोड लगाते हैं वहां जितने मैग्नीट्यूड का, देखो जरा, जितने मैग्नीट्यूड का फोर्स लगता है, तो ये वाला मान लो कि इसको कंसीडर करो, ये देखो 40 वाले को, तो ये 10 था, तो जाके वो ऐड हो जाता है, उसको सीधे उत्ते से नीचे लेके चला जाएगा वो, जितने मैग्नीट्यूड का आएगा यहाँ। और देखो ये नीचे से लग रहा है, तो ये यहाँ आया 50 और ये सुट्ट से ऊपर लेके चला गया इसको, पूरा 80 का ये ब्लॉक है, लेकिन ऊपर जाके पॉजिटिव, तो पहले माइनस को कम किया यहाँ तक, फिर उसके बाद 30 प्लस जाके ऊपर फिर ऐसे खत्म हुआ। सिमिलरली वही रोल बेंडिंग मूवमेंट में किसका होता है, मूवमेंट अगर अलग से लग रहा है, तो इस केस में तो मूवमेंट हमने उसके ऑफसेट दिया था, तो वी हैव कैलकुलेटेड फ्रॉम ऑफसेट। और कुछ प्रॉब्लम ऐसे होंगे जहां पर मूवमेंट बाहर से लगा के देगा क्वेश्चन में, सो यू हैव टू बी अप्रोच द सेम अप्रोच। ठीक है, और whenever you can see whenever there are sign change in the ये इस टाइप का कोई साइन चेंज हो रहा है इस यूडीएल के केस में, तो आप वहां पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम निकालना पड़ेगा, क्योंकि where the shear force change its sign बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम दिस प्रोसीजर। आप देखिए बेंडिंग मोमेंट को ड्रॉ कैसे करना है, 0 दोनों कॉर्नर पे 0 है, फिर x जो हमने लिया वहां पर आया 22.5, फिर उसके बाद b हमारे पास है वो लिया, तो एक अपने से स्केल नहीं लेना है, अपने से एक अंदाजे से 22 थोड़ा ऊपर होगा, फिर 20 थोड़ा नीचे होगा, 10 उससे भी नीचे होगा, तो यहाँ से यहाँ तक जो 20 तक है दिस इज अ पैराबोला। जब तक यूडीएल है सो देयर इज अ पैराबोला, आफ्टर यूडीएल देयर इज इंक्लाइन लाइन, यू कैन सी दैट दिस इंक्लाइन लाइन ऑफ दिस, देन फिर स्ट्रेट लाइन, ये वाला ऊपर देखो जरा, देन ये आया, फिर उसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक आएगा ये, so this bending moment where the bending moment changes sign, that is called point of contraflexa, or so point of contraflexa can also you can calculate if asked, if not don't ask you can calculate it, जो आप कैलकुलेट करिए तो और अच्छा है, इट्स डिपेंड ऑन कितने नंबर का है, 14 मार्क्स का इतना बड़ा निकाल आता है, डेफिनेटली यू कैलकुलेट विदाउट सेइंग, विदाउट आस्किंग, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यू नो दैट। ठीक है, सो इन दिस वे, इस तरह से हम कैलकुलेट कर पाए ये क्यूबिक, ये बेंडिंग मोमेंट। अच्छा, क्यूबिक, जब भी यूडीएल ये यूवीएल या ट्रायंगुलर लोड है, तो उसका बेंडिंग मोमेंट में आपको क्यूबिक पैराबोला मिलता है, थोड़ी और गहरा होता है क्यूबिक पैराबोला, और ऑलवेज द साइड ऑफ द पैराबोला जो भी बनेगा वो हमेशा ऊपर की तरफ होगा, ये डोम जो पाला है ऊपर, यहाँ भी डोम ऊपर की तरफ ही है उसका, वो वाला कर्व ये हमेशा। दिस इज सिंपल थिंग्स व्हाट नीड टू बी, आपको याद रखने की जरूरत है यहाँ। तो दिस इज द बोथ डायग्राम, आपको तीनों डायग्राम एक साथ बनाने पड़ेंगे एग्जाम में, एक पेज में पहले बना छोड़ देना जगह, फिर कैलकुलेशन करना है, पहले लोड डायग्राम, ये ऊपर वाला लोड डायग्राम, फिर शेयर फोर्स डायग्राम, और दिस इज द फिर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐसे हो गया, और ये जहां जहां ऊपर की तरफ जाएगा ये आपका 0 लाइन है, वो पॉजिटिव प्लस साइन सिंबल बनाना, नीचे है नेगेटिव सिंबल बनाना, दिस वे ऐसे कर सकते हैं, और आप इसको पेंसिल से ऐसे 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 वो भी कर सकते हैं। तो ये तो अप टू यू,
आपको क्या करना है, ठीक है। सो आप इस तरह से यू कैन गो फॉर, आप इसको समझ सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए इसके तरफ एक और इस तरह का एक समस्या, एक प्रॉब्लम देन वी कैन सी, मैं थोड़ा सा इसको एक जगह तक लेके जाके बता दूं, छोड़ दूंगा तो यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे सॉल्व करना। अब इफ देखो, अब इसमें बड़ा कॉम्बिनेशन है, देखो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है बेटा, दिस थिंग्स विल मेक कम द कॉम्पिटिटिव काइंड ऑफ एग्जामिनेशन, दे वांट टू नो यू नो द कांसेप्ट और नॉट द सिंपल थिंग्स। पूरा अभी एक एक चीज आपको यहाँ क्या करना है, पहले इसके 30 डिग्री पे वर्क कर रहा है तो इसके दो कंपोनेंट निकालो, एक ये वाला कंपोनेंट और एक ये वाला कंपोनेंट। तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दिस इज 40 cos 30 और दिस इज द 40 sin 30। ये सॉल्व करो दोनों को, तो जैसे आए तो देखो इसका ये वाला देखो, ये जो है 30 उसका तो कोई, ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो कोई, H20 आया सर, H23 आएगा। हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, वो तो अपन देख लेंगे, वो तो हम लिख के लाए हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो वेरी गुड, थैंक यू। चलिए अब चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड में, इसको देखते हैं। ये देखो यहाँ इसको किया, इसको रिप्लेस किया, ये बिल्कुल 20 आ गया और ये 34.64 किलो न्यूटन आ गया कॉस कंपोनेंट, और ये इस कंपोनेंट आया, यहाँ तक आया। फिर तो अब समझ में आ रहा है, जैसे पिछले बार किया था वो करेंगे। इसका कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का तो वैसे भी कोई रोल नहीं है यहाँ। ये देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एज इट इज रख दिया, लेकिन वो उसको कैलकुलेशन में कोई उसको ना शेयर फोर्स में यूज होगा ना बेंडिंग मोमेंट में आएगा, वो एज इट इज रहेगा, उसका कोई रोल नहीं। तो दैट डायरेक्टली 20 और ये आपका एक मोमेंट बन गया इसमें, देखो ये वाला 20 इंटू, ये देखो यहाँ समझो ये, सो यहाँ आया आपका ओके, ये वाला हमको मूवमेंट, अच्छा ये दिस विल प्रोड्यूस द मूवमेंट, हाँ ये ऑफसेट है ना 7.7 का, या तो ये ऑफसेट मूवमेंट तो प्रोड्यूस करने वाला है। तो पहला 20 तो आपने लोड ले लिया पॉइंट वाला, फिर यहाँ कैलकुलेशन करते हैं मूवमेंट के लिए। तो एक मूवमेंट, ये जो इस पॉइंट, यहाँ पर जो भी पॉइंट रख लो, एक पॉइंट नाम रख ले तो इसका, इस वाले पॉइंट का अगर इसको ए रखते हो, इसका बी, तो इस वाले का सी हो जाएगा, ठीक है। तो सी वाले में, सी में मूवमेंट कैलकुलेशन करते, देखो जरा समझो, इस पॉइंट पे ये लोड कितना डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, 0.5, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 0.5। ये किधर घुमाने की कोशिश कर रहा है, देखो जरा क्लॉक वाइज, तो पॉजिटिव हो गया। अब इस वाले फोर्स को लेके आओ इसको यहाँ, ये 0.7 डिस्टेंस पे, ये लेकिन ये लेके जाएगा इसको किधर, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो गया माइनस। तो माइनस ऑफ दिस 34.64 इंटू 0.7, माइनस करके इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया निगेटिव 14 पॉइंट समथिंग। क्योंकि ये निगेटिव में आ गया इसलिए ये एंटी क्लॉकवाइज लगा दिया इसको, ठीक है। तो ये हो गया माइनस 40.225 किलो न्यूटन मीटर। तो फाइनल हमारा ये इस तरह से यू कैन सी, उसका जो फाइनल बीम है, लोडेड है बीम, वो कुछ ऐसे दिखने लगी इस तरह से। तो ये बीम अब फाइनल अब तैयार है, अब वही प्रोसीजर लगाना है जो आपने लगाया, तो देख लो जल्दी फटाफट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये नया कॉन्सेप्ट, यहाँ दो नया कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए, वो हमने कर दिए, ठीक है। तो इस तरह से यू कैन सॉल्व इट। अब ये सब, अब यहाँ पर ये कौन सी क्या बोलते हैं अपना, ये कैंटिलीवर बीम है, तो आप ये यहाँ ये चाहो तो इसको कैलकुलेट करो, ये रिएक्शन एट दिस पॉइंट, और नहीं करना है ना डायरेक्ट सॉल्व कर लो, इस साइड से प्रोसेस करो मेरे लेफ्ट साइड से, तो यू विल गेट द सॉल्यूशन। यहाँ फिर करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इस तरह से ये सॉल्व होगा। ये F11 यहाँ से डायरेक्ट पहले 0 हो गया, ठीक है, फिर यहाँ पर 2 हो गया, जहाँ पर एंड हो गया कैसे हो जाएगा, 20 इंटू 3, ये 60 हो गया, क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ लगेगा। फिर इसके बाद आइए F33 पे सेम हो जाएगा -60, फिर उसके बाद 28 होगा 4 की जगह पे, तो माइनस 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 80 हो जाएगा, है ना, -80 हो जाएगा। और F55 में जब आप आओगे तो एज इट इज ये -80 यहाँ पर होगा, ठीक है।
तो वर्टिकल रिएक्शन ये इसलिए निकाला है, क्योंकि आपको जीरो, नहीं तो अगर आपको पता नहीं होगा तो जीरो नहीं आएगा। अदरवाइज यू कैन सॉल्व दिस इस तरह, इस डायरेक्ट ये ना निकाल के ऐसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, जो मैं कल दूसरी मेथड बताने वाला हूँ। डायरेक्ट मेथड में यहाँ पर अगर रिएक्शन नहीं निकाला तो चेक कर, आपका क्रॉस चेक नहीं हो पाएगा, बस एक ही प्रॉब्लम है। और अगर फुल मेथड जो हमने कल अभी आपसे डिस्कस करने वाला हूँ एक दिन बाद, तो उस मेथड को आप फिर यहाँ पर रिएक्शन निकालने की जरूरत नहीं है। तो वी हैव टू मेथड्स जहां पर ये सपोर्ट रिएक्शन निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन केस ऑफ द कैंटिलीवर। सो ठीक है, डायरेक्ट में हम कर लेंगे, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। देखो इसमें है ऑलरेडी कैसे निकालना है। देखो सबसे पहले क्या, देखो इसके दो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये है, लिख दिया। हमको मेन काम किससे है, वर्टिकल वाले से। तो कितना वर्टिकल, हाउ मच इट इज एक्टिंग, 23 एंड प्लस 20 80 वर्टिकल कंपोनेंट। तो 80 एंड हाउ मच द मूवमेंट विल एक्ट ऑन दैट, इस पॉइंट डी पे निकालो मूवमेंट। तो 20 इंटू 3 ये देखो इसका डेढ़, इसका हाफ और इसका 2, 3.5 माइनस 2 1 to 1, तो ये आ गया यहाँ पर। और ये किधर घूमेगा, ये देखो इसका, ये तो टोटल वी हैव टू बी कितना आया। और अच्छा हाँ, वी हैव टू बी टेक दिस कपल आल्सो, ये तो ये आ जाएगा 240.2 किलो न्यूटन मीटर। तो मतलब अगर आप ये हटाओ दिस कैंटिलीवर, सो यू हैव टू बी अप्लाई वन कपल एंड वन वर्टिकल रिएक्शन, इसको बैलेंस करने के लिए। तो आपने निकाल लिया, फिर इसको फोर्स लगा दिया, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन कैलकुलेट। तो सिमिलर फंडा यू कैन यूज हियर, और सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट दिस। आपको यहाँ कपल जो यहाँ मिलेगा और यहाँ मिलेगा, यू कैन यूज दैट, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच। और ये कुछ एक्सरसाइज हैं उसी टाइप से, आफ्टर दिस यू कैन आल्सो गो फॉर